So hi, let's start with this geography orientation session today. Let's understand. I will also just take care of your queries or whatever the questions in your mind. I will finish it. First, let's understand my strategies to finish this uh, optional paper. So I will cover this topic in coming 5 months, and in this 5 months, I will cover the entire syllabus of the geography optional. I think you might have seen this geography optional syllabus. As you people know, in UPSC, this optional paper is of 500 marks, so it's very crucial and it's play significant role in civil services preparation. This optional paper, because as you know, the mains marks is determine your merit. So in the mains, okay, the optional play a crucial role, as I have said, of 500 marks. And here in optional paper, as you people know, there are two papers. Okay, so I will cover these two papers, and in each paper there are two sections, section A and section B. Say consider first the paper 1. If the paper 1, so there are two section as I have said, and in every sections, okay, there are 5 units. So altogether there are 10 units. Okay, so I will finish the entire units. I will supported it with the dictation and the notes. Okay, and the notes having the entire required things, that is flowchart and the maps and sufficient data's information. Okay, and the contemporary case study I will also give in that notes. Okay, so and after finishing every units, okay, I will take the test in which I will cover the PYQs also, and we will also discuss on some questions, or you can say the probable questions for civil services mains. So my target is to finish this in the month of July. So the people, those who wanted to attain this year mains, okay, so they must write in August 2026. So this will be the cycle. I will complete it. Okay, so you can write the mains if you take this year pre. Okay, and if you qualify it, so you can rightly take this examinations in the month of August. So this is the planning. Now, what are the क्वेरीज आपके दिमाग में भी कुछ होगा, और ऐसे अगर देखा जाए तो ये मैंने बताया. सो लाइक दैट इन द सेकेंड पेपर आई विल ऑल्सो कवर द इंटायर सिलेबस, एंड फर्दर आफ्टर एवरी यूनिट्स आई विल टेक अ टेस्ट. एज आई फिनिश द यूनिट्स आई विल टेक द टेस्ट. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ओवर PYQs, so you get the ideas what kind of questions the UPSC have been asked. Okay, since we will cover the question paper of past 10 years, 15 years. Okay, and then I will also discuss over the probable issues. Okay, considering 2026 examinations. Now, what are the questions generally asked by the students? Okay, regarding this. So, as per my own experiences, ओके, ऑफ द लास्ट डिकेड, जो अभी एक नैरेटिव आ गया है इसके ऊपर, आपके माइंड में भी होगा कि ऑप्शनल ज्योग्राफी क्यों ले. क्योंकि एक ओरिएंटेशन या मार्केट में एक ऐसा ओपिनियंस आप सुनते हो कि ज़्यादातर लोग ये बताते हैं कि कुछ अदर ऑप्शनल्स के बारे में कि उसको लेना ज़्यादा इजी है, सिलेबस थोड़ा छोटा है, बड़ा है, ऐसा कुछ करके. बट एज यू पीपल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस, ओके, तो अगर आप नेचर ऑफ एग्जाम्स को लेकर देखोगे, ओके, सो एंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस, तो यहाँ पर आपको नेचर दो दिखाई देता है. ठीक है, or you can consider the three different stages. The nature is different. In the first stage, the UPSC is given you objective questions,
MCQ based. Here the UPSC check your objectivity. Try to understand. यहाँ यूपीएससी क्या चेक कर रहा है? आपका ऑब्जेक्टिविटी चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ नेचर क्या है? अब यहाँ देखा जाए तो ऑब्जेक्टिविटी इज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस, ओके। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन? अगर आप बात करें प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ प्रिपरेशंस, तो यहाँ पर आपका एक ब्रॉडर कवरेज होगा, broader coverage of general studies with the contemporary issues, okay, what you called current affairs in the general studies paper, and the CSAT paper where the UPSC check the aptitude, the mathematical aptitude, okay, as well as the reasoning aptitude and reading comprehension aptitude, okay। यहाँ पर 3 एप्टीट्यूड चेक करते हैं। मैथमेटिकल, आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्या है। दूसरा है रीजनिंग, आपकी रीजन थिंकिंग एबिलिटी, ओके। एंड सेकंड थर्ड जो है वो चेक करते हैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ठीक है ना। आप कैसे डिसाइफर कर पाते हैं किसी चीज़ को, प्रिसाइजली कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं अगर यू गेट सर्टेन रिपोर्ट सर्टेन। सो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और रीडिंग एबिलिटी भी चेक हो जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि द नेचर ऑफ एग्जाम इज डिफरेंट बिकॉज हियर यू हैव सम ऑप्शन। Now at this level of examinations, when you enter for the mains examinations, now the nature is changed and subjectivity आ गई यहाँ पे, subjectivity, okay। Now when you look at the question of general studies and optional, and in mains, as you know, the syllabus become quite vast, okay। Here the coverage is broader, syllabus is not fast but the coverage is broader, so coverage is vast. Here there is depth in every part of the subjects, or you can say in every paper what you need। So in general studies certain depth, okay, क्योंकि वहाँ पर syllabus थोड़ा confined है, यहाँ पर syllabus vague है। If you look at the syllabus of UPSC, और अगर प्री का syllabus पढ़ते हो तो समझ नहीं पाएगा फ्रेशर्स कि उसे क्या पढ़ना है, ओके। तो ऐसा तो क्या है, व्हाट द मेंटोर्स और गाइड्स, ओके, ऑलवेज सजेस्ट कि मेंस का सिलेबस सामने रखो और उससे प्रिपेयर करो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल स्टडीज, ओके। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो मेंस का सिलेबस रखिए और सिलेबस को कवर कर लीजिए, तो आपका प्री भी कवरेज होगा। थोड़ा एडिशनल फैक्चुअल डायमेंशंस प्री में, जैसे मैंने कहा कि चूंकि ऑब्जेक्टिफाइड पैटर्न में है, नेचर इसका अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको ऐड ऑन करना पड़ता है फैक्ट्स को, बट बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की ज़रूरत मेंस में नहीं। कैसे आप पता कर सकते हो कि हाउ आई हैव टू अप्रोच द मेंस? लुक एट द क्वेश्चन पेपर एंड लुक एट द टर्म्स व्हाट दे आस्क्ड। So often you get the questions where what you find, discuss, okay, the question is discuss, okay, discuss the impact of climate change, okay, or the question is describe, okay, describe the recent pattern of, okay, agriculture in India, say for example, or critically analyze, the question is critically analyze, okay, or evaluate, और समटाइम्स एग्जामिन। तो क्वेश्चंस अगर आप देखते हो, ओके, और एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ मॉनसून्स एंड इट्स इम्पैक्ट ओवर द इंडियन एग्रीकल्चर, और से फॉर एग्जांपल हाउ इट लिंक द culture, so its human aspect, its physical aspects, okay। So if you look at the question paper, so the demand is different here, not similar to the demand of preliminary exams। यहाँ demand altogether change हो गया। कैसे change हो गया? क्योंकि यहाँ पर आपसे analytical approach में questions पूछे जा रहे हैं,
एनालिसिस की डिमांड है यहाँ पर। ओके, सो जैसे मैंने कहा, तो यहाँ अप्रोच एनालिटिकल है, यहाँ पर बहुत फैक्ट्स की जरूरत नहीं है। यस ऑफ कोर्स, to analyze anything you need a support of certain facts, but I am telling you certain facts। ऐसा नहीं कि लोड ज्यादा ले लिया, ज्यादा क्रिएट कर लिया, स्टार्टेड कंपाइलिंग, ओके, लॉट्स ऑफ फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ प्रेजेंटेशंस प्ले अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सो वंस यू स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग फेनोमेना इन ज्योग्राफी, ओके, तो यहाँ आपका जो इस मेंस का पार्ट है, इसके बॉडी के स्ट्रक्चर्स को देखोगे, तो हियर देयर इज अ नीड ऑफ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ओके, सर्टेन कंटेम्पररीज, एनालिटिकल्स, डेटास, ओके, ग्राफ्स, इनकी नीड्स पड़ेगी, डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चंस। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में आप फ्लो चार्ट बना पाओगे, सभी में डायग्राम्स दोगे ही, अननेसेसरली उसको इनपुट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं। तो एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एग्जाम इज कि इसका नेचर अलग है, ये सब्जेक्टिविटी डिमांड करता है, और यहाँ अप्रोच चेंज हो जाता है। यहाँ अप्रोच क्या होगा? एनालिटिकल अप्रोच होगा, ठीक है। सो अप्रोच इज डिफरेंट। Now at the third stage of examination, so whether it is the general studies paper, whether it is the essay paper, okay, or whether it is the optional paper, the approach must be analytical, okay। अब इसमें भी थोड़े अप्रोच में अलग अलग हैं, यहाँ थोड़ा और डेप्थ में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी टू इंटीग्रेट द थिंग्स यहाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हो कि जब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट पॉइंट्स की डिमांड्स है, ठीक है। तो मेरा फोकस ऑप्शनल के ऊपर है। अब है कि अगर आप थर्ड स्टेज में जाते हैं, दिस इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। सो पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ जज हो रहे, ओके, कि whether you are fit for these services or not, whether you have the required aptitude as well as attitudes and the values, okay, for these services or not। तो यहाँ पर डिमांड फिर अलग होगी, ठीक है। बट इसके आपकी पर्सनैलिटी एक दिन में ग्रूम नहीं होती। जब आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ग्रेजुअली यू अक्वायर्ड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ओके, यू हॉन योर स्किल्स। सो ग्रेजुअली क्या होगा, इनकलकेट होता चला जाता है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन जर्नी जो है वो एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब क्वेश्चन है कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है, जैसा आपने बताया कि सिलेबस के बारे में, कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ज्योग्राफी हैविंग द वास्ट सिलेबस। तो ऐसा कहेंगे कि वास्ट सिलेबस तो अगर यूपीएससी ने ऑप्शनल डिज़ाइन किया है, अगर आप देखेंगे ऑप्शनल्स को, यू टेक एनी ऑप्शन, ओके, एंड एज यू पीपल नो साइंस इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इन सिविल सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या जोलॉजी बॉटनी से, मैथमेटिक्स से नहीं आ रहे, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस, ओके। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सिलेबस अगर आप सभी का देखेंगे, all the subjects syllabus is, according to my opinion, is equal। आपको दिखता है कि अच्छा यहाँ पर ये इतने जो है लेंदी सिलेबस लिखा हुआ है इन दिस यूनिट, यहाँ पर लिखे हुए हैं 5-10 सेंटेंसेज जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कंसिडर किए गए हैं। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को पिक करते हो, ठीक है, और उसमें अगर आप देखते हो कि सिलेबस छोटा है, बट इफ़ यू स्टार्टेड डिसाइफरिंग इट, अगर आप उसके डेप्थ में जाएंगे, तो देयर आर वेरियस सब टॉपिक्स।
अब है कि ज्योग्राफी का सिलेबस आपको वास्ट दिखता है, बट अगर आप कंसिडर करो, इफ यू कंसिडर द पेपर वन एज वेल एज द पेपर टू, and in paper one if you consider this section, look at here, first of all try to understand, this is the paper one, okay, syllabus major units, okay. So if you look at here in the paper one, the section A, okay, we have to cover geomorphology, climatology, oceanography, biogeography, environmental geography. Now try to understand, is it not a part of general studies? Of course, all these three segment, okay, as well as this two also, if you consider, it play a very significant role in the paper one of general studies, paper one of GS, okay, as well as when you consider the paper three, what you find here, the disaster management, okay, the question from the flood, the question from the drought, the question from the cyclone, the question from the mass movement or the slope movement like landslide, okay, or the mud flow, okay, or the avalanche, rock fall, okay, is it not blended with this topic? Yes, of course, आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, और वहां पर उसका अप्लाइड फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, तो क्या वो आपको एडवांटेज नहीं देगा इफ यू कवर दिस टॉपिक? ऑफ कोर्स, यहाँ पर भी एडवांटेज होगा, ठीक है, और साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज। नाउ इफ यू स्टार्टेड लर्निंग, अब देखो थोड़ा सा कि पेपर टू, व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग पेपर टू, द इंटरनेशनल रिलेशन, इन ज्योग्राफी वी कॉल्ड इट जियोपॉलिटिक्स, in geography what we called it geopolitics, not the international relation. Why? Because in at the global level, when you look at this present political scenarios, is it not derived by the geography? Why there is a war between Ukraine and Russia? Do you all think the resource is very important for that? They are fighting for the space, they are fighting for the resources, of course. What is geography basically? It is an spatial science, study of space, no? Zeus plus Graphos. So what it is about? A study of space. So geography is spatial science. Okay. तो आपको नहीं लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशन हम जियोपॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है? सो हियर यू हैव टू लर्न द पॉलिटिकल ज्योग्राफी आल्सो। अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पर मॉडल एंड थ्योरीज में, तो यहाँ थ्योरीज रिलेटेड टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी है, एंड पेपर टू में भी आपका इसका एप्लीकेशन। सो आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि एग्जैक्टली आईआर में वही पढ़ना है जो ज्योग्राफी में पढ़ना है, बट ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग विल सपोर्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस इंटरनेशनल रिलेशन। आप मैप करोगे, आप लोकेशन को देखोगे, आपके समझ में आएगा कि व्हाई देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेबर्स, ठीक है? तो क्या वो अंडरस्टैंडिंग आपको सपोर्ट नहीं करता? ऑफ कोर्स करता है। व्हेन यू आर राइटिंग इवन एथिक्स, ओके, सो एथिक्स में अगर आप देखेंगे, व्हेन यू लुक एट द थ्योरीज, ओके, सर्टेन थ्योरीज यू लर्न हियर इन द पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके, थॉट में जब कुछ आप चीजें पढ़ेंगे वो भी आपको सपोर्ट करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एग्जैक्टली बिकॉज द सिलेबस ऑफ एथिक्स इज डिफरेंट, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी समवेयर सपोर्ट यू टू अंडरस्टैंड वेल दैट सब्जेक्ट ऑल्सो, क्योंकि आप वहाँ थिंकर्स पढ़ रहे हैं, आप थॉट पढ़ रहे हैं, आप वहाँ बिहेवियरलिज्म पढ़ रहे हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म पढ़ रहे हैं, ह्यूमनिज्म पढ़ रहे हैं, तो उसका भी ब्लेंड आपको वहाँ दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ या दावा कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी से सारा कुछ ही है, मैंने कहा कि ज्योग्राफी विल सपोर्ट यू।
एंड एज आई हैव सेड आई विल कवर इन 5 months. तो ऐसा नहीं है कि इट इज वास्ट, इट डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड हार्ड वर्क. So being a teacher, being a mentor, what is my duty is to simplify the understanding of the subject. Okay, तो आप इसको क्या करें कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है कि ये जो मैंने कहा लोड ऑफ कंटेंट, की कंटेंट को इकट्ठा करना, कंपाइल करना और पाइल अप करके रख लेना, दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजीज. आप कभी भी किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यू को देखते हो, देख कर ही आए होगे और आप देखते ही हैं और आगे भी देखेंगे, अभी रिजल्ट आएगा तो उनका क्या स्ट्रैटेजीज है कि सबसे पहले वो सिंप्लीफाई करते हैं अपने नोट्स को, अपने बर्डन को रिड्यूस करते हैं और उस पर वो वर्क करते हैं. स्ट्रक्चरिंग इम्पॉर्टेंट है, कंपाइलेशंस जो है उसका, ठीक है, नोट्स को पढ़कर और अपना सेल्फ मेक करना जरूरी है, और उसके लिए आपको रिविजन्स पैटर्न्स को, ठीक है, रेक्टिफाई करना होगा. क्योंकि सबसे पुअर स्ट्रैटेजीज क्या है कि आपके पास रिवीजन स्ट्रैटेजीज नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन वंस यू मस्ट गो थ्रू, बट आपके माइंड में ही नहीं है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे. ओके, बिकॉज इन द एग्जामिनेशंस देयर इज अ टाइम लिमिट, and during that period of time only you have to perform rights, okay, the appropriate answers and fulfill the demand of the question. Am I clear? समझ में आ रही है बातें? तो मेरा ये कहना है कि अगर आप देखते हो इन सिलेबस को तो ये सपोर्ट करते हैं. इन पेपर 2 इफ यू लुक एट द सेक्शन 1, here there is a physical part from India, resource agriculture. Is it not helpful in general studies? Yes, of course. In paper 1, as I have said, in paper 3 somewhere, okay, even the economy having some blend of geography. आप वहाँ भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पढ़ेंगे, रिसोर्स पढ़ेंगे, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसका रोल इकोनॉमी में. यहाँ जोग्राफिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, बट दैट अंडरस्टैंडिंग अगेन सपोर्ट यू एज आई हैव सेड. सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि अगर आप ये एडिशनल पॉइंट पढ़ रहे हो ऑप्शनल के अंदर, अगर आपको लग रहा है, तो that will also support you somewhere in general studies. So what you are covering right now, if you are covering the geography, you are not covering only the 500 marks of your optional. Try to understand. Okay, almost you are covering the 100 marks in the paper 1. Okay, because paper 1 के अंदर जनरल स्टडीज में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का हिस्ट्री भी है, 50 मार्क्स का सोशल इश्यूज भी पूछा जाएगा और 100 मार्क्स की ज्योग्राफी पूछी जाएगी. तो यहाँ एक सपोर्ट है. उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन या जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वहाँ भी सपोर्ट करेगा, बट अगर मैं उससे क्लेम ना भी करूँ तो आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट 50 to 80 मार्क्स, ठीक है, ये सपोर्ट करेगा आपको कहाँ पर, इन द पेपर 3. ओके, in paper 3 at least 50 marks it will support in the paper 3, the disaster management questions, okay, environmental related questions you get here in the paper 3. Or if you understand geopolitics well or the political geography, okay, that will support you in the IR sections also, okay, 50 to 80 marks, or you can say the 100 marks, okay, here. सो ऑल टुगेदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस पेपर्स को लेते हैं, कैरी करते हैं, ओके, इट इज इन पेपर 2, तो कितने मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी सपोर्ट हो रही है, नॉट ओनली द 500, ओके, बट 750 मार्क्स. So almost it's support, the geography is support you here preparing 750 marks of mains. अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखेंगे तो इज इट नॉट अ वैल्यूएबल ऑप्शन. तो सिलेबस को लेकर चिंता मत करिए कि सिलेबस वास्ट है, वो कैसे आपको एड ऑन करेगा आपके प्रिपरेशंस में राइट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी. और प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में देखोगे अगर नेचर ऑफ क्वेश्चंस, सो यू ऑलमोस्ट गेट एग्जैक्टली फ्रॉम द ज्योग्राफी, ठीक है, आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑलमोस्ट इन द वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन 10 and 15, और प्लस में ये तो
कंप्लीट ज्योग्राफी की बात मैं कर रहा हूँ. एंड इफ यू ऐड एनवायरमेंट, अगर आप एनवायरमेंट, बिकॉज अभी दिखाया था पेपर 1 में आपको एनवायरमेंट भी पढ़ना है, तो अगर आप ऐड कर लो एनवायरमेंट तो अगेन 10 to 15. So minimum what, how many questions you get? Okay, if you cover the geography optionals, almost 30 questions. So 30 questions means 30% questions. Okay, so that will again support you. This कट ऑफ कितनी जा रही है प्री की? 48 to 52%. सपोर्ट कितना कर रहा है आपको? तो क्या यहाँ आप एज नहीं मिलेगा आपको? ऑफ कोर्स मिलेगा. तो ये जो नैरेटिव है या जो लोग कह रहे हैं कि पहले ही आपने देखा ही नहीं सिलेबस, आपने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने बता दिया कि ये वास्ट है, ठीक है, कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? दूसरा ऑप्शनल ले लिया. खैर, यू पीपल आर ऑलरेडी डिसाइडेड टू टेक द ज्योग्राफी, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो आपके सराउंडिंग्स में लोगों ने आपको भी कहा होगा कि ऐसा ऐसा सोच सकते हैं टुवर्ड्स द अदर सब्जेक्ट्स. मैं ये नहीं कहता कि अदर सब्जेक्ट्स जो है वो इजी या टफ है, ठीक है, इट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स ओन इंटरेस्ट. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट जहां लाई करता है, जहां है, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है. ज्योग्राफी में है आपको लगता है, लेकिन अगर कोई कह रहा हो तो इसलिए आपने चेंज कर लिया अपना ओपिनियन, दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन अकॉर्डिंग टू माय ओन ओपिनियन. So the first and foremost thing is interest. Second, what roles it plays in this entire exam journey. So geography play a vital role in preliminary exams. Geography again play a very significant role in the mains examinations. I'm not considering only the optional क्योंकि वो तो है ही, आपने लिया ही है, लेकिन जीएस में भी इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है. और अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी आपको, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, अगर आपके जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेटर है तो आपको वो पर्सनैलिटी टेस्ट में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके प्लेसेस से होंगे कि बर्थ प्लेस कहाँ है, वहाँ क्या चैलेंजेस है, तो जोग्राफी सपोर्ट यू, ठीक है. या नेशनल प्लानिंग या इंटरनेशनल अफेयर्स से जब क्वेश्चन आएंगे जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, सो जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट यू. इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स ग्रोथ, टूरिज्म ग्रोथ, ज्योग्राफी सपोर्ट्स यू, ठीक है. तो मेरा ये कहना है कि इफ यू लर्न दिस सब्जेक्ट, ओके, एज यू पीपल नो ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड ब्रांच. यहाँ पर साइंस से भी चीज़ें ली गई, कॉमर्स से भी चीज़ें ली गई और आर्ट्स से भी चीज़ें ली गई, ठीक है. तो यहाँ पर आप ज्योग्राफी से भी देखते हो, ज्योग्राफी जो है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है. तो आपने जुआलॉजी से देखा तो आप वाइल्ड लाइफ भी पढ़ते हो, बॉटनी से देखा तो आप प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हो, अगर आप जेनेटिक्स देखोगे तो आप जीन पूल सेंटर आपके सिलेबस में है, ठीक है. उसके अलावा मेट्रियोलॉजी, पेडोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी है, ह्यूमनिज्म भी पढ़ना है आपको, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी है इसके अंदर. इसके अंदर थॉट्स थिंकर्स भी पढ़ने हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच भी है, फिलोसॉफिकल अप्रोच भी है. तो ज्योग्राफी क्या है? इट इज एन व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स. तो अब एक यहाँ पर फिर क्या है कि क्या ये सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटी के बच्चों के लिए पिक करना इजी है? ऑफ कोर्स. ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इट इज साइंस. जैसे अब क्या है ना कि जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो, ओशियनोग्राफी आप पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा साइंस का जो बच्चा है उसको आसानी होती है, क्योंकि थोड़े साइंटिफिक अप्रोच से या प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो अप्रोचेस.
बट इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमैनिटी का बच्चा उसको समझ नहीं सकता है, इतने टफ भी नहीं है उसके अप्रोच या प्रिंसिपल्स जिसको आप नहीं समझ सकते, वो बेसिक्स हैं। यानी अगर आपकी 10th स्टैंडर्ड तक की बेसिक साइंस ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगेन यू हैव टू राइट पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उतनी बेसिक साइंस तो आप पढ़ेंगे ना कि आपको पेपर 3 भी लिखना है, वेदर यू आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड और द आर्ट्स बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटी, तो आपको वो पेपर तो लेना है। तो जब अगर आप उस पेपर की प्रिपरेशन करेंगे या करने वाले हैं, ठीक है, और करना है ही, ठीक है, क्योंकि इन द पेपर 3 इकोनॉमी एंड साइंस टेक हैविंग द ब्रॉडर पार्ट, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड अदर इश्यूज आर देयर, तो आप उसकी प्रिपरेशन करोगे तो बेसिक्स तो पढ़ोगे ना, कवर करोगे, उतनी ही बेसिक्स की रिक्वायरमेंट यहाँ है जब हम अप्लाई करेंगे या लर्न करेंगे। सो अगेन दिस सब्जेक्ट इज गुड फॉर द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो पहले तो अपना फेयर वेंट आउट करिए, निकालिए उसको, और उसके बाद आप इसकी बारे में सोच सकते हैं। अब होता है क्या कि दूसरा, तो मैंने पहला तो कहा कि सिलेबस को लेकर वरी नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको इसका कंट्रीब्यूशंस बता दिया, ठीक है, कि मेंस में क्या है, प्री में क्या है, और इंटरव्यू में क्या रोल, राइट। नाउ अब देखते हो, दूसरा एक क्वेरीज है कि क्या स्कोर आ रहे हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंट पास्ट में एक ट्रेंड है कि कुछ सब्जेक्ट्स जो है उसकी तरफ बच्चों का, या फिर एक ओपिनियंस नैरेटिव मैंने कहा कि, और आपको पता है सोशल मीडिया के ज़माने में जब चीज़ें उठती हैं तो फिर वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती हैं, और फिर बच्चे जो है उसी तरीके से सोचने भी लगते हैं, फ्रेशर्स दे आर नैव। तो अभी क्या है कि मैंने क्या कहा कि द फर्स्ट थिंग इज योर इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि अगर कोई टॉपर है और किसी सब्जेक्ट से वो निकल रहा है तो आप भी वो लेकर और कंफर्ट जोन में हो, क्योंकि उसने कितनी एनर्जी लगाई, कितना इनपुट है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना उसने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वर्क किया है, क्या आप वो कर पाएंगे, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या रही, उसने कैसे प्लानिंग की, रिसोर्स मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, तो आप उस एस्पेक्ट्स को नहीं देखते और आपको ऐसा लगता है कि उसने ले लिया, ठीक है ना, कि इफ एक्स हैज टेकन दिस एंड ही गॉट रैंक 1 और रैंक 2 और इन टॉप 50, तो आप भी ले लोगे तो कर लोगे, नहीं। ऑफ कोर्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट्स, the availability of the materials and the guidance as well as your interest is very important, ठीक है ना, तो ये देखकर ही लेना है क्या सोर्स अवेलेबल है उस सब्जेक्ट्स का। अब अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि साइंस के सब्जेक्ट्स को कम लोग प्रेफर करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में। अब सोचो कि एक स्टूडेंट्स है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है जो स्टैटिस्टिकल सर्विसेज क्वालिफाई कर रहा है, इंडियन स्टैटिस्टिकल या इकोनॉमिक सर्विसेज क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट यहाँ नहीं ले रहा है सिविल सर्विसेज में, जबकि वो भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में स्टैट्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोर एरिया से आ रहे हैं, उसकी डिमांड अलग है। सिविल सर्विसेज में केवल स्टैट तो प्रिपेयर नहीं करना है ना, आपको जनरल स्टडीज भी प्रिपेयर करना है, और वहाँ जनरल स्टडीज का रोल लेस है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो क्या हो गया कि देर इज अ नीड ऑफ डिफरेंट एप्टीट्यूड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अब वो बच्चा स्टार्ट छोड़ रहा है और ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स रख रहे हैं, ज्योग्राफी रख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, और उससे निकाल रहे हैं। वाई, द क्वेश्चन इज वाई, बिकॉज द डिमांड इज डिफरेंट, एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड इज डिफरेंट, एंड इज देयर कंटेंट्स विच इज अवेलेबल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रख लिया अगर आपने, तो क्या उसके कंटेंट अवेलेबल हैं। तो एक फैक्टर क्या होता है अकॉर्डिंग टू माय ओन ओपिनियन, कि बच्चा वो ऑप्शनल रखता है या स्टूडेंट्स के बीच में वो ऑप्शनल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अगर आप देखेंगे जिनके अवेलेबल हैं कंटेंट्स। और क्यों ज्योग्राफी या रिसेंट पास्ट में पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या एंथ्रो या कुछ लिटरेचर्स हैं उनको लेकर, ठीक है, ट्रेंड बढ़ा, क्योंकि इनके कंटेंट हैं मार्केट में, मेंटरशिप है अवेलेबल,
तो क्या मैंने बताया कि द फर्स्ट थिंग्स व्हेन यू पिक द सब्जेक्ट इज योर इंटरेस्ट, as well as of course the availability of the content is very important कि सोर्स है कि नहीं, क्योंकि आपने जर्नी स्टार्ट की और आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, स्टैंडर्ड बुक्स नहीं मिल रहे हैं या नोट्स नहीं मिल रहे हैं या गाइडेंस नहीं अवेलेबल है, तो आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट से ही टफ क्रिएट कर लिया ना, बना लिया। अब एक्सेप्शनली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि खुद ही वर्क कर कर और उस वैसा है कि क्वालिफाई कर गया, बट ऐसे कितने परसेंट केसेस होंगे? ठीक है, 0.5%, वो भी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब है कि क्या स्कोर कर सकते हैं ज्योग्राफी में। तो अगर आप रिसेंट ट्रेंड को देखो, उसको देखकर आप डिसाइड करो कि क्या ज्योग्राफी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। So 2024 results we have, and in 2024 more than 2600 students, okay, qualified from geography in mains, and I'm not talking about ये DOPT details है जो आप देख सकते हैं, and out of that final list के अंदर 147 students are there, so इतने candidates got recommended by UPSC for the services. How many? 147. Okay, so almost around 1000 seats are there. Okay, and out of thousands अगर आप ये देख रहे हो, is it not a good score? So if you, अगर हम देख ले रहे हैं number of selections, अब ये जो बच्चा है कि जो मेंस में हुआ, अब यहाँ अगर आप कंसिडर करें अभी जो नैरेटिव चल रहा है अदर सब्जेक्ट्स को लेकर, तो अगर आप मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स को देखते हो तो ऑब्वियसली द पीरियड व्हेन द सब्जेक्ट गेट पॉपुलैरिटी, तो बच्चे रखने लगते हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन सब्जेक्ट से होंगे? जो आपके माइंड में चल रहा है पॉपुलर सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बताया अभी कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, उसके कंसीडर अगर आप उन सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में कम बच्चे हैं। और आउट ऑफ दैट नंबर, से फॉर एग्जांपल अगर मैं देख रहा हूँ कि एक पॉपुलर ऑप्शनल है जिसमें कि 1 लाख से स्टूडेंट्स हैं, और 1 लाख से स्टूडेंट्स में से मान लो 2600 और 2700 स्टूडेंट्स मेंस में एंटर कर रहे हैं। ओके, 1 lakh students has started preparing for a very popular optional and qualify the pre and finally in mains इसी के बराबर है इक्विवेलेंट नंबर में या थोड़े ज़्यादा मेंस में सेलेक्ट हुए। अब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी हमेशा, ठीक है, टॉप रैंक सब्जेक्ट्स है मेंस के अंदर। अगर ज्योग्राफी में देखें तो यहाँ पर 30,000 स्टूडेंट्स हैज टेकन और 50,000 स्टूडेंट्स हैज टेकन। ओके, मैं मान लो 50,000 भी कंसिडर कर रहा हूँ कि 50,000 स्टूडेंट्स हैज टेकन दिस ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल एट ऑल इंडिया लेवल। जरूरी नहीं कि वो इस ईयर दें, मतलब ले लिया है, ठीक है, मे बी नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दें। तो अगर इस ईयर दे रहे होंगे 30 to 35,000 और उसमें ये फिगर आ रहा है, is it not a good figure? Of course. So you people are not analyzing, not understanding, not looking at the datas. एक नैरेटिव मार्केट में आ गया और आपने एक फियर साइकोसिस डेवलप कर लिया इस सब्जेक्ट को लेकर, और विदाउट प्रिपरेशन आपने लीव कर दिया। अभी क्या हुआ कि कुछ केसेस ऐसे भी आए कि बच्चे ने ग्रेजुएशन किया ज्योग्राफी से, आए दिल्ली, यहाँ के मार्केट्स में ऐसा र्यूमर सुना कि ज्योग्राफी को लेकर, उन्होंने ज्योग्राफी को ड्रॉप कर लिया। ओके, और बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, उनका जो एप्टीट्यूड है वो ज्योग्राफी के लिए है, तो एक दो अटेम्प्ट्स दिया, अच्छे स्कोर नहीं कर पाए, तो फिर से क्योंकि आपका एप्टीट्यूड डेवलप नहीं है दूसरे सब्जेक्ट में, तो दूसरे को देखकर आप ले भी लोगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उस पर वर्क, उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बोर करेंगे, तो उसमें आप अपनी कैसे, ठीक है ना, वाइटलिटी वीगर मेंटेन करते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं और उस पर भी लिखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स नॉट अ 1 month प्रोसेस, इज अ ईयर प्रोसेस। और पूरे 1 साल तक मोटिवेशन रखना, ठीक है ना, ये बड़ी बात है। और हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि अगर आप पैटर्न ऑफ
एग्जाम्स देखोगे और उसके अंदर जब आप क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करोगे तो एवरी यूनिट इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इन ज्योग्राफी ओनली। तो आपकी एवरी यूनिट्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर राइटिंग वर्क होना चाहिए एट सर्टेन लेवल, ठीक है। तो जब आप ऐसे स्किल्स को डेवलप करते हो तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, एंड यू हैव, वही टाइम मैनेजमेंट मैंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवीजन प्लान्स, रिपीटेटिव रिवीजन इज रिक्वायर्ड। आप किसी भी टॉपर्स को मैंने कहा कि सुन लो, अगर हमारी बात नहीं भी सुननी है, आप उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की सुनिए, तो उनके पास रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत साउंड रिवीजन स्ट्रैटेजी है, उन्होंने राइटिंग पे काफ़ी इम्प्रूव किया, वर्क किया, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली। तो डैट पार्ट यू हैव टू लुक एट। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शनल पिक कर लिया तो आप सिलेक्ट ही हो जाएंगे, उस पर काम भी करना होगा फ्रॉम योर साइड, आपको तो दिया ही जाएगा, ठीक है ना। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड यू द सपोर्ट्स, ओके। तो यहाँ मैंने कहा कि ये सिनेरियो है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल टोटल का अगर हम देखेंगे अभी भी इतने वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर आप देखेंगे तो 7 to 10% स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं इन सब्जेक्ट से, दैट सब्जेक्ट दैट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल, इन द फाइनल लिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इट मीन्स के सिलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और टॉप 50 टॉप 100 में भी बच्चे आ रहे हैं। 2008 के पहले की सिनेरियो अलग थी, देयर आर सो मेनी टॉपर्स फ्रॉम ज्योग्राफी। 2008 में उन्होंने ऑप्शनल का सिलेबस बदला, थोड़ा सा फर्क पड़ा उससे, और जब सीसेट लॉन्च हुआ फिर यहाँ सिलेबस चेंज हुए थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होने लगा कि ऐसा, तो एक नैरेटिव धीरे धीरे और वो र्यूमर्स मार्केट में ऐसा स्प्रेड हुआ कि एक माइंडसेट क्रिएट हो गया बच्चों के अंदर। तो मैंने कहा है कि आपने पिक कर लिया है तो डरने की जरूरत नहीं। अब है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में है कि स्कोर क्या ज्योग्राफी में आ रहे हैं और क्या बेटर स्कोर हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आउट ऑफ 500 मेंस में क्या स्कोर बेटर होगा? 280 और 280 प्लस, दैट विल बी अ बेटर स्कोर, इट इज अ मिनिमम, ओके, मार्क्स। अब है कि 280 क्या लाना आसान है, या 280 प्लस भी आ सकते हैं, 300 प्लस भी आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आए भी हैं, 336 तक भी मार्क्स आए हैं, ठीक है। यानी ये ला सकते हैं आप, ये तो मिनिमम मार्क्स आप अटेन कर सकते हो, बट उसके लिए यू हैव टू डेवलप सर्टेन स्किल्स एज आई हैव सेड। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि हाँ 280 प्लस आएगा फिर घर जाके सो गया कि अब तो सर ने कह दिया कि अब आना ही है, तो मेरे कहने से नहीं आएगा। या मैंने कह दिया कि नहीं नहीं, आई विल गिव यू अ कंटेंट, आई विल गिव यू अ नोट्स, तो आपने सोचा कि अब नोट्स आ गया और मैंने कह दिया अब ये मार्क्स आ गए, अब चलो, ऐसा नहीं है। कंटेंट से भी क्या एक्सट्रैक्ट करना है, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, उसमें क्या इनपुट देना है, एंड ऑफ कोर्स योर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, your analytical abilities is important, you have to develop that skills, okay। Understanding of the contemporary issues, because in the paper to specifically लिख दिया है contemporary issues, एक बना दिया लास्ट यूनिट, बट द क्वेश्चन इज कि क्या कंटेम्प्रेरी यूनिट का रोल पेपर 1 में नहीं है? डेफिनेटली है। क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट जो यूनिट है अप्लाइड, अगर आप पढ़ेंगे या जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस भी देखोगे तो उसमें क्या क्वेश्चन है कि अभी जो रिसेंट पैटर्न देखोगे सम क्या कर रहा है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी लिंक करके क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग, उसमें आपका क्या वर्क है, दैट आल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो मेरा ये कहना है कि वी विल सपोर्ट यू हियर, ओके, टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस यूनिट्स, लेकिन उस पर आपको घर में वर्क करना है। आपको पीवाईक्यू देखना है, उसके ऊपर आपको लर्न करना है, उसके ऊपर लिखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट समझना है कि आप रिक्वायर्ड टाइम में क्वेश्चंस पूरा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स माइंड में रखने हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, कहाँ मैंने कहा कि डायग्राम्स की ज़रूरत है, कहाँ फ्लो चार्ट्स में हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
कहाँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, कहाँ पाई चार्ट्स बनाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आप एक दिन में लर्न नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम की ज़रूरत पड़ती है, और टाइम आप स्पेंड करेंगे, आपके स्किल्स वो ऑन होंगे, और ये सिलेबस को आप काफ़ी फिर ईज फील करोगे इसमें, और अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो to get 250 plus is not a tiring task in geography according to my own opinion. ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा कि उसके लिए आपको अपना स्टूडेंट हैज टू गिव देयर ओन इनपुट, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, रिवीजन स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और मैंने कहा कि कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखने होंगे। मैंने कहा सर्टेन वाइटल स्टैटिस्टिक्स, नॉट ऑल द डेटा यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि फैक्ट 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 पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे कि सिविल सर्विसेज, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड अलग है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी एग्जाम्स। एम आई क्लियर? समझ में आ रही है बातें? ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट, तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग in the okay in civil services, because we have the data. So based on data 2024, अभी 25 के बाद आ ही जाएगा डेटा आपके पास। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 26 27, ओके, तो आप देख सकते हो कि अच्छा कितने बच्चे, ठीक है, मेंस में अपीयर हुए थे, कितने फाइनल लिस्ट में अभी आए हैं, ठीक है ना। तो ये तो डेटा आपके पास होगा। अब है स्कोर करने की जो बेसिक डिमांड है, वो मैंने आपको बताई। और मैंने कहा कि क्यों इसकी इतनी भी र्यूमर्स के बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी स्टिल ओके इन द मार्केट, ठीक है ना। द साइलेंटली जो थोड़े बच्चे हैं जिनमें एप्टीट्यूड है वो ले ही रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ब्लेंड है यहाँ पर, साइंस एंड ह्यूमैनिटी दोनों बैकग्राउंड के बच्चे इस सब्जेक्ट को कंफर्टेबली कवर कर सकते हैं। और दैट्स वाई इन स्पाइट ऑफ all these rumors, this subject again, okay, in the top 3 4 subjects, okay, in the UPSC। तो ये अभी ऐसे नहीं है कि पॉपुलैरिटी लैक हो गई है, तो आप ऐसा मत सोचो कि आपके सराउंडिंग में आपके कॉलीग्स और फ्रेंड्स अदर ऑप्शनल को लेकर ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको बताते होंगे या डेली डिस्कस करते होंगे कि हाँ हाँ सोच लो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा कि दोस्तों ने कहा है 2 बार सोच लो, 5 बार सोच लो। तो मैंने कहा कि हाँ डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर। तो आपको करियर का क्वेश्चन है तो आपको ये डिसाइड तो करना ही है, सोच के ही लेना है। ऐसा थोड़ी है कि जर्नी आप किसी के कहने से ले लो। मैंने ये कहा इंटरेस्ट अपना देखना, अंडरस्टैंडिंग देखनी है, बट ये नहीं है कि डर से छोड़ना है, कि किसी के कहने से लीव कर दिया। आप खुद सेल्फ डिसीजन ले लीजिए और उसके रोल्स की को समझिए, पेपर्स को देखिए। तो मैंने आपको के डाउट्स यहाँ पर बताए कि व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन दिस एग्जाम of civil services, okay, at the pre level, at the means level and interview। फिर मैंने आपको बताया कि how many students are appearing, okay, and we have the data as I have said, what the data reflect about the selections percentage, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और मैंने ये भी बताया कि if you okay develop certain skills, getting 280 plus is not a tiring task, वो बहुत आसान है। अब क्वेश्चन है कि अगर आप देखोगे कि कुछ और क्वेरीज हैं, क्या क्वेरीज हैं? सोर्सेज को लेकर, ठीक है ना। सभी ऑप्शनल्स में एक ये भी है कि व्हाट सोर्स यू हैव टू लर्न। सिलेबस मैंने अगर आपको बता दिया कि दोनों पेपर में 5 यूनिट्स हैं, और ये मैं कवर करूंगा। पर्सपेक्टिव इन दिस वी हैव लर्न द थॉट्स इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ओके, we learn the global perspective of economic as well as
यहाँ कुछ थ्योरीज भी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स पैटर्न एट द ग्लोबल लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस एंड सर्टेन फीचर्स, ओके वी लर्न हियर, and what are the trends in the fluctuation of population, and certain population theories we have to learn here in the model theories and laws of human geography. उसके अलावा रीजनल प्लानिंग भी पढ़ना है एट द ग्लोबल लेवल, और बेसिक्स जो है ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजनल प्लानिंग. इन पेपर टू सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, द क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द मैप. ओके, तो कुछ मैप वर्क, आई विल प्रोवाइड यू द बुकलेट ऑफ द मैप्स. ओके, हम लोग उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें मैं बताऊं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो बुकलेट से तो एटलीस्ट यू गेट 6 to 7 एंट्रीज, मिनिमम 6 यू गेट, ठीक है ना. और मैक्सिमम तो चांस की बात है, क्योंकि हम लोग अपडेट करते रहते हैं उस इंफॉर्मेशन को कंटेम्प्रेरी से, तो कभी कभी 8 भी आ सकता है, बट डेफिनेटली यू गेट 6 to 7 एंट्रीज. और थोड़ा करंट अफेयर्स अगर आपने वाइजली कवर किया है, एक दो एंट्रीज आपको मिल जाती हैं, तो 80% आप कर सकते हैं एनी हाउ. उसके बाद फिजिकल पार्ट ऑफ इंडियाज आपको पढ़ना है, फिजिकल सेटिंग्स के अंदर रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ दैट. एंड देन इन दिस सेगमेंट सेक्शन बी इफ देखोगे, ह्यूमन एस्पेक्ट, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कल्चरल सेटिंग, रीजनल डेवलपमेंट अगेन हियर ऑफ इंडिया, एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज कंटेम्प्रेरी इश्यूज. ओके, दीज आर द यूनिट्स. सिलेबस आपने देखा है, इसके ब्रेकअप्स उसमें लिखे हुए हैं. वी विल कवर द इंटायर टॉपिक. प्रेजेंटेशंस, मैंने कहा कि अगर आपकी आंसर राइटिंग 280 प्लस करना है तो आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स इसका इस्तेमाल करना होगा, और इसी तरह से ल्यूसिड फॉर्म में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स, जिसमें सेल्फ डेवलप्ड, अगर ये आप देखोगे, दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट टेकन फ्रॉम अ बुक, ये डिराइव्ड है, इसको डिराइव किया है विथ आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंसेस, इसको बनाया है. और आप एग्जाम्स में 3D डायग्राम नहीं बनाएंगे, 2D में एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि सारे डायग्राम आप 3D में नहीं बना पाओगे. मैंने क्या कहा, टाइम इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल. उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड का मैप भी देना होता है, क्योंकि मैप बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा इन सर्टेन केसेस. ओके, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अगर आ रहा है तो आपको दिखाना होगा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे आप स्कीमेटिक मैप में भी दिखा सकते हो, आई विल टेल यू. इंडिया का स्कीमेटिक मैप कैसे डेवलप करोगे, कहाँ पर फुल मैप बनाओगे, कहाँ स्कीमेटिक मैप से काम चलाना है, कहाँ वर्ल्ड का फुल मैप बनाना है, कहाँ स्कीमेटिक मैप से काम चलाना है, ठीक है. तो ये हम लर्न करेंगे इस प्रोसेस में. तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंटेशन डज मैटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका प्रेजेंटेशन पुअर है तो डेफिनेटली स्कोर नहीं कर पाओगे, और ऐसा सभी सब्जेक्ट्स में है. और यहाँ थोड़ा फ्लो चार्ट, डायग्राम्स का रोल, मैप का रोल इम्पॉर्टेंट है, वो लर्न करेंगे प्रोसेस में. तो मैंने कहा कि इसी तरह से ल्यूसिड फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे पेपर 1, पेपर 2. अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा. तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर नॉलेज इनटू द सक्सेस, कि कैसे आप जो है क्या सोर्सेज यूटिलाइज करोगे. ऑफ कोर्स द फर्स्ट सोर्स व्हाट यू हैव टू यूटिलाइज एंड रिपीटेडली रिवाइज इज द क्लास नोट्स. ओके, तो पहला तो सोर्स ये है कि क्लास नोट्स. अब क्वेश्चंस ये है, ऑप्शनल के बच्चों के पास ये क्वेश्चन होगा कि और क्या सोर्स पढ़ेंगे, कि शुड यू हैव टू गॉन थ्रू द एनसीईआरटी, आपको क्या पढ़ना है एनसीईआरटी, या चाहिए पढ़ना. तो मेरा कहना है कि ऑप्शनल्स के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है. वो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपका जनरल स्टडीज के कुछ प्रिंसिपल्स को आपको देखना है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे. तो एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग जो है ऑप्शनल्स के लिए, ओके, वो तो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है. तो क्या अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है और क्लास में डायरेक्ट आ गए तो ज्योग्राफी समझ सकते हो? हाँ, समझ सकते हो, ठीक है. तो नहीं भी पढ़कर आओगे तो ज्योग्राफी को समझ लोगे, ठीक है. तो एनसीईआरटी क्या करेंगे, आप पढ़ सकते हो, यू कैन क्रिएट टाइम एंड यू कैन लर्न, ठीक है. वो एक बेसिक है.
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंटेंट अगर आपको करना है तो बहुत बर्डन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, क्लास नोट्स को रिपीटेटिवली यूज करो। अब यहाँ मैंने लिखा है थर्ड कैटेगरी ऑफ द रिसोर्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इज सम रेफरेंस बुक। अब ऑप्शनल के बच्चे को लगता है हमेशा ये कि जो नोट्स मिल रहा है इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, तो वो कुछ कहते हैं रेफरेंस बुक। अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी हो या फिर जियोमॉर्फोलॉजी हो, एक बुक काफ़ी पॉपुलर है, सविंदर सिंह की बुक, ठीक है ना। बट मुझे ये लगता है कि जो रिसेंट पैटर्न देखोगे क्वेश्चंस का तो उसमें सविंदर सिंह से क्वेश्चंस अप्रोच थोड़े डिफरेंट हैं। अगर आप रूपा पब्लिकेशन के बुक ले लेते हैं, मेड सिंपल के नाम से आते हैं, 2 वॉल्यूम, ओके। कौन सा पब्लिकेशन? रूपा। इसकी 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 ऑफ फिजिकल, वॉल्यूम 2 ऑफ ह्यूमन। आप ये ले सकते हो, बहुत हैंडी बुक है। ऐसा नहीं है कि देयर आर सो मेनी पेजेस, बहुत बल्कि नहीं है। जैसे अगर आप सविंदर सिंह की बुक लेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी की एक यूनिट है, क्लाइमेटोलॉजी की एक सेपरेट है, एक फिजिकल भी आती है जिसमें जियोमॉर्फो, क्लाइमेट, ओशनोग्राफी, बायो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब है, और उनकी सेपरेट भी बुक है। तो इट डिपेंड ऑन, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो रेफरेंस बुक भी आप तब पढ़ें जब क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, और एक और बेसिक बुक है जीसी लियोंग की, ये जीसी लियोंग भी आप पढ़ सकते हैं। डेट विल सपोर्ट यू इन जीएस पेपर ऑल्सो। जीसी लियोंग की पढ़ोगे बुक और एनसीईआरटी तो थोड़ा आपका बेसिक साउंड हो जाएगा, आप ये कर सकते हो। और ये हैंडी बुक है, ऐसा साथ में आप आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो फॉर फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन व्हाट आई विल सजेस्ट दैट यू टेक दिस मेड सिंपल ऑफ रूपा, ओके, आप ये ले सकते हो। अगर आप थॉट्स और थिंकर की बात करें तो माजिद हुसैन की ले सकते हैं बुक। सो यू कैन टेक फॉर द पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी थॉट्स के लिए। और इनकी मॉडल एंड थ्योरीज की भी बुक आती है, तो आप ले सकते हैं रेफरेंस बुक माजिद हुसैन की। इंडियन ज्योग्राफी लेना होगा तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप खुल्लर की किताब ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें अलग अलग बुक भी पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। कुछ लोग शर्मा की किताब, कुछ लोग माजिद हुसैन की बुक भी पढ़ते हैं। बट दैट इज अगेन, इसमें अब क्या है कि कुछ स्टैटिस्टिक्स डेटा आपको ओल्ड भी मिलेंगे, बट ये है कि हाँ कुछ बेसिक्स, प्रिंसिपल्स, ओके, कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी, टर्म्स, एक्सप्लेनेशंस, ओके, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये आपको मिल जाएगा। तो रेफरेंस बुक के तौर पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स ये पब्लिश्ड हुई है बुक पहले, तो इसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन कई बार नहीं मिलेंगे, कंटेम्प्रेरी से आपको कवर करना होगा, वो हम करेंगे। डेटा स्टैटिस्टिक्स जो मैंने कहा कि नॉट लोड नहीं लेना है उसका बहुत ज़्यादा, ठीक है, रेलेवेंट चीज़ें ही कवर करनी है उसमें। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि क्या इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा किताबें भी नहीं लेनी है इनिशियली। इनिशियली आपको क्या सोर्सेज पढ़ने हैं, अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं मेरे सजेशंस और ओपिनियंस को फॉलो करेंगे तो बेसिक्स अगर आपने नहीं कवर किया है, आपका बैकग्राउंड ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स लर्न करना है, तो मैंने कहा जीसी लियोंग और एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद क्लास नोट्स को आप रिपीटेडली रिवाइज करिए, बार बार मैं हर सभी क्लासेस में यही बोलता हूँ, और कोई भी मेंटोर और गाइड यही बोलेगा कि पहले आप एक सोर्स के ऊपर कमांड कर लो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई, उसको प्रेजेंट करना सीख गए, उसको यूज़ करना सीख गए, देन यू मूव टू द अदर कंटेंट। तब आपको जाना चाहिए, फिर कहाँ जाना चाहिए, तब आप मुझसे पूछो आकर कि क्या रेफरेंस बुक पढ़ें, तो मैं बताऊंगा। मैंने अभी कुछ बताया आपको कि फिजिकल और ह्यूमन का 2 वॉल्यूम है रूपा में, आप मेड सिंपल के नाम से, तो आप ले सकते हैं। थॉट्स के लिए आप माजिद हुसैन की बुक रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं।
लर्न कर सकते हैं। मॉडल एंड थ्योरी लेना है तो आप इसमें माजिद हुसैन की ही एक और पतली सी बुक आती है, वो ले सकते हैं उसके लिए। इंडियन ज्योग्राफी आप डी.आर. खुल्लर से पढ़ सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक के तौर पर। तो उस बुक में जो मैं खुल्लर की बुक बता रहा हूँ उसमें फिजिकल सेटिंग भी है, एग्रीकल्चर, रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, एवरीथिंग इज देयर। एक बल्कि बुक है तो आप उसमें कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके रिक्वायरमेंट इनिशियली नहीं है, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मैंने जैसा कहा कि अभी आपको सिलेबस दिखाया पेपर 2 का कि उसमें एक यूनिट कंटेम्प्रेरी है, तो कंटेम्प्रेरी को कवर करने के लिए वी विल कवर व्हेन वी कवर द टॉपिक्स, हम कवर करेंगे। लेकिन फ्यू पीपल आर ओके गोइंग टू टेक दिस एग्जामिनेशन इन 2027 से, आप में से। तो अब उन बच्चों के लिए क्या है कि करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कुछ केस स्टडी दिखा, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशंस हैं तो उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी पर में उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी करंट अफेयर्स की स्टडी भी इसमें सपोर्टिव रोल प्ले करता है, तो वो करना है। तो ये था कंटेंट साइड के आपके सोर्सेज क्या होंगे। सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखो तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे, ठीक है। सोर्सेज अगर ज़्यादा आपने कर लिया, मल्टीपल सोर्सेज इकट्ठा कर लिया, तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, यू गेट कंफ्यूज्ड, आप खुद को क्राइसिस में ले आओगे। अब है कि राइटिंग स्किल, मैंने कहा मेंस को क्रैक करने के लिए राइटिंग स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करना है। और इसमें वर्क क्या करना है, सबसे पहले मेरा ये है कि एज यू फिनिश द यूनिट, जैसे मैंने कहा कि हम टेस्ट भी लेंगे, पीवाईक्यू पर भी डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। उस डिस्कशन में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होगा, हमें डिमांड ऑफ क्वेश्चंस को समझते हुए अपने स्ट्रक्चर और फ्रेमिंग पर काम करना होगा। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर द मीडियम यू चूज, ठीक है ना, इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस, आपकी कमांड उस पर होनी चाहिए बेहतर, और सब्जेक्ट वोकैब्स आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपकी वोकैबलरीज अच्छी नहीं है और अगर आप वर्ड्स नहीं यूज कर पा रहे, तो आप डेफिनेटली मार्क्स नहीं है। और राइटिंग स्किल में मैप वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, फ्लो चार्ट्स मैंने कहा उसका इंपॉर्टेंट रोल है, और डायग्राम्स। अब मैंने आपको बताया कि डायग्राम्स बनाने हैं तो आपको कई जगह टाइम कम है, स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। स्कीमेटिक का मतलब है कि जैसे हम लोग ले लिया, ठीक है, और इंडिया ऐसे हम लोग बना दिया, तो ये इंडिया, और इसमें दिखा रहे हो तो मास नहीं कटेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि मास क्या होगा कि रिड्यूस हो गया, कट गया, ठीक है। अब जैसे आपको दिखाना है कि हाँ ओशन करंट चल रहे हैं नदर्न सदर्न हेमिस्फेयर में, आपने इधर कॉन्टिनेंटल पार्ट दिखा दिया, इधर ओशन दिखा दिया और बता दिया कि अटलांटिक में ये करंट का सर्कुलेशन है या पैसिफिक में ये करंट का सर्कुलेशन, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, वर्ल्ड मैप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, लैंड पार्ट इन द नदर्न हेमिस्फेयर इज मोर, सदर्न हेमिस्फेयर इज लेस, समझ रहे हो, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है। तो क्या होता है कि इन एग्जामिनेशंस मैंने जब लिखा डायग्राम, तो डायग्राम का मतलब नहीं है कि हाँ वर्ल्ड और इंडिया का डायग्राम हर जगह बनाया और टाइम कंज्यूम कर लिया, बहुत सारी जगह हमने स्कीमेटिक डायग्राम से अपनी चीजों को रिप्रेजेंट किया। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम अपने आइडियाज बताते हैं, राइजिंग ट्रेंड, ठीक है, रिड्यूसिंग ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड, समझ रहे हो। पाई चार्ट और फ्लो चार्ट से हम अपने आइडियाज बता देते हैं, तो इससे टाइम सेव होता है। तो राइटिंग स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, इन आइडियाज पर काम करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम, मैंने कहा टाइम इज लिमिटेड, इन द लिमिटेड टाइम यू हैव टू अप्रोच इंटायर क्वेश्चंस, ओके, एंड यू हैव टू फेच गुड मार्क्स। तो वो भी एक आर्ट है। नॉलेज बहुत है, वहां प्रेजेंट नहीं कर पाए तो आप फेल हो गए एग्जाम्स में। बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ रखा था, बहुत सारे नोट्स कवर कर रखे थे, लेकिन वहाँ लिख कर ही नहीं आ पाए, टाइम आपका, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाए क्वेश्चन ही। तो मैंने कहा डेट इज अ आर्ट। कंटेम्प्रेरी इश्यूज हाउ यू विल कवर, बाय रीडिंग अ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। अब आपने तैयारी शुरू की है, जनरल स्टडीज भी पढ़ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली सभी लोग कहते हैं कि
अगर इंग्लिश मीडियम है आपका, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस मीडियम, सो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस यू कैन विजिट, यू कैन read. Okay, or you can follow one magazines which is related to the UPSC. ऐसा नहीं कि SSC बैंकिंग वाली मैगजीन्स पढ़ रहे हैं तो वो काम आएगा, वो कभी काम नहीं आएगा। स्टैंडर्ड मैगजीन्स, क्योंकि मैगजीन्स का क्या रोल है कि न्यूज़पेपर आप अर्ली स्टेजेस में स्टूडेंट हो तो पता नहीं लगता कई बार कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैगजीन्स जो है वो थोड़ा वर्क आपका आसान कर दिया कि उसने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हर मंथ कंपाइल करके आपने सामने दे दिया कि एटलीस्ट इतनी तो पढ़ लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। उसमें भी देखोगे ये मैगजीन्स भी आजकल 100 120 पेजेस के हैं। जब वो पढ़ना शुरू करोगे और बेसिक्स आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि इस मैगजीन्स में भी आपके काम की 50-60 पेजेस हैं, ठीक है। बाकी तो बैकग्राउंड है, जो कि बैकग्राउंड आप लर्न करोगे, धीरे धीरे वो चीज़ें याद होंगी तो दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सर्टेन रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स है कि अब 200 पेजेस नहीं पढ़ने, उसकी समरी पढ़नी है। इफ एनी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड, ठीक है। अब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई मार्केट में, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई मार्केट में, रिकमेंडेशंस आ गए मार्केट में, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज पर कोई रिपोर्ट्स आ गई, तो क्या आपको सारे वो 200 पेजेस पढ़ने? नहीं, वाइटल थिंग्स यू हैव टू पिक। अब उसके समरीज या एक्सट्रैक्ट करने हैं तो वहां से आते हैं, वो मैगजीन और न्यूज़पेपर में आते हैं, वहां से आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा, क्वेश्चंस वहां से पिक होते हैं। एंड हाउ यू कैन रिड्यूस योर लेबर, एग्जाम्स में के समय आप कैसे कंफर्ट फील करेंगे, उसका एक तरीका है प्रिपरेशन में कि आपको हैंडआउट्स तैयार करने होते हैं on certain issues which is repeatedly asked in examinations, whether it is general studies or optional paper. कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां आपको समरीज बनानी पड़ेगी। आपने पढ़ लिया 20-50 पेजेस और उसको 2-3 पेजेस में समराइज कर लिया, हैंड आउट बना लिया, सो बिफोर एग्जामिनेशन यू कैन क्विकली रिवाइज। और ये चीज़ें आप एक दिन में डेवलप नहीं करोगे, पहले रिपीटेडली पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, देन यू कैन। अदरवाइज अभी नोट्स बनाना शुरू करोगे, सारी चीज़ें उतार लोगे बुक से या नोट्स से, तो वो फिर हैंड आउट नहीं है। So that will what reduced your burden during examinations and raise your confidence. आप जल्दी रिवाइज कर पाएंगे बिफोर एग्जामिनेशंस। अदरवाइज आपके पास 50-500 पेज, 1000 और 5000 पेजेस के नोट्स हैं तो आप नहीं रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर मेकिंग यू हैव टू लर्न। इन एवरी टॉपिक आई विल गिव यू द स्ट्रक्चर कि टॉपिक को कैसे कवर करते हैं, फिर उसमें क्या सब टॉपिक्स पढ़ते हैं। That structuring you have to learn, because once you enter into the mains, in every topics you have to, okay, maintain that structure: introduction, body, conclusion. So inference must be futuristic, बॉडी के अंदर क्या देना है, तो वो स्ट्रक्चरिंग करना पहले से नहीं आपका प्रिपेयर है तो आप एग्जाम्स में नहीं लिख पाओगे। ओके, और उसका बेस्ट इंसाइट कौन देगा? पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो टाइम बाउंड मैनर में, उस पर प्रैक्टिस करो, उसकी स्ट्रक्चरिंग करो पीवाईक्यू को। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम आंसर्स को टाइम पर कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ यू कैन इनिशिएट योर प्रिपरेशंस। अब मैंने तो अपनी बात कर दी, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर देंगे, पर कर लेंगे तो इतना आसान है जितना मैं बोल रहा हूँ, वो बनाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज जो है प्रिपरेशन का, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इज रीडिंग। आपको जो हैंड आउट दिया गया, आपको जो नोट्स दिए गए, आप उसको रीड करिए। जो रेफरेंस बुक बताया कि चलो एनसीईआरटी जीसी लियोंग ही पढ़ लो, अगर आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा आपको बेसिक्स अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करनी है, तो वो काम करना है, रीडिंग करनी है। एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, ठीक है। पढ़ो, पहले पूछा जाएगा आपसे महीने दिन के बाद एनसीईआरटी हो गया? नहीं सर, चल रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो एनसीईआरटी लेके भाई, क्या चल रहा है? टारगेट बेस्ड स्टडी करनी होगी ना, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर इज फिक्स्ड।
एग्जाम का कैलेंडर फिक्स्ड है कि वो इस डेट को होना है, इस टाइम में होना है, इस मंथ में होना है, और आपका चल रहा है। कहाँ जा रहा है? आपको अभी टारगेट बेस्ड प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे ये चीजें कब फिनिश करनी है। तो फर्स्ट स्टेज इज रीडिंग, सेकेंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। पहली बार में तो आपको बहुत सारे वोकैब टर्म समझ में ही नहीं आएंगे, क्लास में उसको धीरे धीरे समझाया जाएगा, जैसे जैसे यूनिट फिनिश होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर जब रिविजिट करोगे। इसीलिए मैंने कहा रिपीटेटिव रिवीजन इज वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं। तो फिर वो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग का स्टेज आता है, जहां आपकी वोकैबलरी, आपके कॉन्सेप्ट, आपके प्रिंसिपल, ठीक है ना, फिलोसफिकल अप्रोच, एप्टीट्यूड समझ में आता है। तो धीरे धीरे फिर से आपके स्किन हॉर्न होते हैं, और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है। और जब ये दो स्टेज क्रॉस कर लेते हो, तब आप लिखने का स्टेज आता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं सब्जेक्ट पर है, आपने कवरेज ही नहीं किया है, तो लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? तो क्या फर्स्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन से लिखना शुरू करना है? आंसर नहीं, डेफिनेटली नो। एटलीस्ट फिनिश अ यूनिट। जियोमॉर्फोलॉजी पूरा कर लो, तो जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी लिंक्स क्लाइमेट से होगी, उसकी लिंक ओशनोग्राफी से होगी, उसकी लिंक एनवायरमेंट से होगी। लेकिन हाँ, यस ऑफ कोर्स, आफ्टर फिनिशिंग जियोमॉर्फोलॉजी एज अ यूनिट, ओके, 70% क्वेश्चंस आप करने की पोजीशन में होंगे, अगर आपने ये दो स्टेज पूरा किया है तब। ओके, एंड व्हाट नॉट टू डू। बार बार मैं कह रहा हूं, ओवर बर्डन ऑफ मटेरियल्स, कि दोस्त दे रहे हैं कि ये कोचिंग का भी ले आओ, वो कोचिंग का भी ले आओ, ये रेफरेंस बुक भी इकट्ठा कर लो। तो आप एक लाइब्रेरी, यू वोंट वांट टू बी, ठीक है ना, व्हाट यू वुड लाइक टू बी, एकेडमिशियन बनना है, प्रोफेसर बनना है, रिसर्चर बनना है? नहीं, आपको आईएएस बनना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है। तो सिविल सर्वेंट की डिमांड अलग है। मैंने क्या कहा, एनालिटिकल अप्रोच है, नॉट एक्सप्रेसिव नैरेटिव अप्रोच नहीं है। एकेडमिक एग्जाम्स में पेजेस भर रहे हैं, आपको यहाँ बहुत डिफाइंड पेजेस में लिखना होता है। तो यहाँ अप्रोच, यहाँ मैंने कहा बहुत सारे फैक्ट्स नहीं लिखने हैं, स्कॉलरी अप्रोच नहीं देना है कि आप चार थिंकर और चार जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के नेम दे रहे हो कि इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। दिस इज नॉट अ रिसर्च पेपर, ये एकेडमिक पेपर नहीं है जिसको आप आंसर कर रहे हो। यहाँ पेजेस कन्फाइंड है, द क्वेश्चन इज गिवन एंड द पेजेस इज गिवन, इन दैट पेजेस यू हैव टू कंप्लीट योर आंसर, ठीक है। तो स्कॉलरी अप्रोच नहीं चाहिए, ये बात समझिए आप इस एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि फिर आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज, और बाबाओं से दूर रहिए मार्केट में। देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स दोज हु आर सपोज टू से सो मेनी थिंग्स। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई और आप दूसरे को ही फॉलो कर रहे हैं। यू नेवर गेट सिलेक्टेड, ठीक है। आप अपना एक, अपना वर्क स्टाइल डेवलप कीजिए, आप अपनी राइटिंग स्किल देखिए, ठीक है। दूसरा, आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओके। So save your time if you want it. At least give 8 hours a day for your study. अब आप क्या है, आपका जो जनरेशन है, ठीक है, वो क्या जनरेशन है, डिजिटल एरा में पैदा हुआ, वेरी हैंडी। अब दिन भर जो है मोबाइल फोन में बिजी हैं, ठीक है। एंड यू आर द पार्ट ऑफ द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप इंस्टाग्राम भी आपको चलाना है, उस पर भी अपडेट रखना है, आपके ऊपर टेंशन है। आपको एफबी में भी लाइव स्टेटस अपडेट करना है, नहीं। आपको यूट्यूब भी चलाना है, उसके भी पेजेस हैं, आप यूट्यूबर्स भी बनना चाहते हैं। तो आप यू गेट कंफ्यूज्ड। कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों से बाहर निकलिए, थोड़ा समय दीजिए। 8 आवर्स कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी इज रिक्वायर्ड। क्योंकि 8 आवर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो फिजिबल है, वो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। उसके लिए एक बेयर मिनिमम डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अब मैं आपको बोल दूँ 12 घंटे पढ़ लो, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। 12 घंटे आपने पढ़ा होगा एग्जाम के 2 4 5 दिन पहले ही, ट्रूली, वो भी मजबूरी में, क्योंकि पूरे साल पढ़ा नहीं तो नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए जगे हुए हैं। ठीक है। तो क्या है कि कॉन्सिस्टेंटली इफ यू गिव 8 आवर्स, ओके, तब भी आप इस एग्जाम्स को, ठीक है, आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं 1 ईयर में, और आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो सोने का रूटीन चेंज करना होगा, और खास करके डिस्कशन के समय क्लास में तो नहीं ही सोना होगा, है ना। एंड हाउ यू कैन रिड्यूस योर बर्डन, you can even create a good group of 1 or 2 candidates where you may discuss the PYQs, certain facts. उससे थोड़ा बर्डन रिड्यूस होता है ग्रुप टास्क से। जैसे मैपिंग है तो आपस में पूछ कर लर्न कर लिया, फैक्ट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, वाइटल डेटाज है, पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, अभी आपको मैक्सिमम को पता ही नहीं होगा कि, ठीक है ना, 1 पॉइंट ऐसे बताएंगे टोटल पॉपुलेशन नहीं। ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है कि अगर आपने कह दिया 145 करोड़, उसमें लाख है, उसमें हजार है, उसमें, ठीक है ना। सो फिगर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो क्या होता है कि क्या दैट फिगर इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे प्री के क्वेश्चन होंगे, मैं पूछूंगा कि अच्छा कितनी लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी किस स्टेट की है। तो ये वाइटल डेटास क्या होगा कि वाइटल डेटा आपको पता नहीं है, या अगर पता भी है कि हाँ चलो इस स्टेट की है तो फिगर नहीं याद है, ऐसे कुछ वाइटल, मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स आप ग्रुप वर्क से प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। आप अगर बार बार भूल रहे हो तो यू मे आस्क, यू मे प्रिपेयर, ओके। कंटेम्प्रेरी इश्यूज को कवर कर सकते हैं मिलकर, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा है कि थोड़ा सा वेंट आउट करने के लिए भी आपको एक कंपनी चाहिए, एक दो दोस्त चाहिए जो कि लाइक माइंडेड हो, जो आपके फील्ड से हो। क्योंकि आपके जो फील्ड से नहीं है वो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि उनका कुछ लेना देना नहीं है प्रिपरेशन से। सो व्हाट, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है, नॉन सीरियस कैंडिडेट से, या जो आपके फील्ड में वर्क नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा उनकी बातों में नहीं आना है, आपका कंसंट्रेशन लूज होगा, आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, फिर आपकी जर्नी अफेक्ट होगी। ठीक है। क्या हो रहा है, बच्चा आ रहा है दिल्ली में और जा रहा है और 4 घंटे जिम कर रहा है और 5 घंटे सो रहा है। आया क्या था, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करने, प्रिपरेट क्या कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग। अरे तो आपको क्या रेसलर बनना है कि बॉडी बिल्डिंग में जाना है। तो आपका एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए ना। मैंने क्या कहा कि आप यहाँ आए किसी और पर्पज से, कुछ कर रहे हो और वाई यू आर डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि आपकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनको सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन से कुछ लेना ही देना नहीं है, ठीक है। और आप उन्हीं के पास आकर, और वैसे ही आपने अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया है। सो यू डेवलप अ कोर ग्रुप एंड मस्ट इंटरैक्ट। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ यहाँ आपके सब्जेक्ट्स में सपोर्ट करने के लिए। So according to my own opinion, what is the key to success is the self-assessment, hard work and confidence. और अगर इनमें से कोई भी चीज आपका लैक है, अगर आप खुद को एसेस नहीं कर पा रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, आपने जो पढ़ा और दिन के लास्ट में, रात में, अगर आप उस पर लिख नहीं पा रहे हो, यह है सेल्फ असेसमेंट, तो आपकी प्रिपरेशन लैक कर रही है, वो डायरेक्शनल नहीं है। तो आपको और इनपुट देना होगा और टाइम देना होगा और बेटर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, वो आप ही को बनानी है। ठीक है। और दूसरा है कॉन्फिडेंस रखना है कि यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशंस। अभी कुछ बच्चे हैं इस ईयर जो कि लगे हुए हैं पिछले 2 3 सालों से, लेकिन दे आर नॉट एबल टू, दे हैव नॉट गट्स टू इवन फिल अप द फॉर्म। अभी भी कंफ्यूजन या डिलेमा में है कि फॉर्म भरे नहीं भरे, ऑप्शनल तैयार है कि नहीं, जीएस प्रिपेयर है कि नहीं। तो किया क्या फिर आपने।
तो कोचिंग और इंस्टीट्यूशंस आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी जगह एग्जाम्स नहीं निकालेंगे, आपको एग्जाम में बैठना है, यू हैव टू परफॉर्म। तो उसका डे वन से सेल्फ असेसमेंट करो। ये सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस इज नॉट अ राइटिंग प्रोसेस, या आपका असेसमेंट प्रोसेस है। हर दिन आप असेस करिए कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, देन एंड देयर यू कैन क्लियर। नहीं तो कंटेंट भी होगा, रिसोर्सेज भी होंगे, सब कुछ होगा आपकी सराउंडिंग में, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, सो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। ओके, एंड क्या है, अगर आप देखोगे द ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशंस, तो सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट्स में मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट क्लियर होते हैं। सो व्हाट इज द आइडिया? ओके, कि डोंट गिव अप। ओके, एज द लेट प्रेसिडेंट हैज सेड, तो आप गिव अप मत करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हैं। ठीक है, वो प्रॉडगी, या फिर आप कह सकते हो उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, वैसे बच्चे हैं कुछ, लेकिन मेजॉरिटी को देखेंगे, इवन लास्ट ईयर टॉपर्स की भी बात सुनेंगे तो आपने देखा होगा कि उसने कैसे प्लानिंग की, कितने फेलियर्स झेला। ठीक है ना, और उसके बाद, और उसने बहुत सच्चाई से आकर क्राउड में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि देखो मैं फ्रेशर नहीं हूँ, और मैंने इतना परसिवरेंस, इतना जूझना, इतना हार्ड वर्क और पेशेंस रखना, वर्क करना। ठीक है ना, तो यू मस्ट अप्रिशिएट दैट गर्ल फॉर देयर ऑनेस्टी। ओके, और साथ में ये भी चीज़ की आकर सामने उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन के बाद बोलेंगे कि नहीं, इंस्टीट्यूशन से कोई गाइडेंस नहीं लिया, ऐसा है वैसा है। उसने एक्सेप्ट तो किया कि हाँ लिया, इतनी बार फेल हुए, इस अटेम्प्ट में निकले। ठीक है ना, ये लॉन्ग जर्नी है 5-6 ईयर्स की, ऐसा नहीं है कि एक साल में बड़ा कुछ अचीव कर लिया। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट सो मच सो लकी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी है, थोड़ा पेशेंस भी रखना है, क्योंकि ये जो है एग्जाम्स, उसमें फर्स्ट स्टेज ही जो है वो बहुत डाइसी और अनप्रेडिक्टेबल है। समटाइम्स प्री स्टेज में ही कई बार ऐसे भी बच्चे हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचे और प्री नहीं हुआ। तो क्या है कि डोंट गिव अप, थोड़ा पेशेंस रखो, काम करो, बड़ा अचीव करना है गोल। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। और क्या है इसमें कि अब मैंने कहा परसिवरेंस और सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। आप एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट होंगे तो ये मोमेंटरल होगा। तो इस तरह से प्लानिंग करनी है। ठीक है, सो दिस इज एनफ फ्रॉम माय साइड्स। और कोई क्वेरीज, और अगर है तो फिर हम लोग आगे आकर मिलेंगे और बात करेंगे। ओके, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।